طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. بندر سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے, ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے. کچھ دن پہلے میں ایک سوال کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں نا ایتھیسٹ, یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے نا. 60 سال تم جرم کرتے ہو تو مذہب یہ کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلو گے. ارے بھائی عمریں 60 سال کی 70 سال کی ہوتی ہیں, تو 70 سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر 60 سال جیل ہو جانی چاہیے قیامت کے دن. تو اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا؟ جرم محدود ہے اور سزا کیا ہے؟ لامحدود. یہ لوگ بھی یہ بھی بہت اعتراض اٹھاتے ہیں, لیکن یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں, آپ کو بتا دوں میں. یہ اپنا اس اعتراض کو دنیا پہ فٹ کرے نا تو وہیں بھی یہ اصول غلط ثابت ہوگا. چوری کتنی دیر کی ہوتی ہے جب آپ انسان چوری کرتا ہے؟ بعض دفعہ 1 منٹ کی ہوتی ہے, بعض دفعہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور سزا کتنے سال کی ہوتی ہے بھائی؟ کسی کو 1 سال جیل میں ڈالا, وہ چوری کی نوعیت پر ہے کہ چرایا کیا ہے. بعض دفعہ عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے. قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ ایک گولی یہاں یوں کیا, 1 سیکنڈ میں بندہ شاٹ, اور سزا عمر قید. تو بھائی جرم تو 1 منٹ میں کیا, سزا کیا دی جا رہی ہے؟ اور عمر قید میں تو کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی, جب تک زندہ ہے کہاں پڑا رہے گا؟ باہر نہیں نکلے گا. تو تم دنیا میں یہ اصول نہیں مانتے تو آخرت میں بھی یہ اصول نہیں ہے. آخرت میں دنیا میں یہ اصول کیوں ہے؟ دیکھو کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جرم کتنے دن کیا, جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے. بھائی جرم میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے. جرم میں ہمیشہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. آپ گالی دیں پڑوسی کو, وہی گالی ابا کو دیں, جرم بالکل ایک جیسا ہے, کوانٹٹی وہی ہے. پورے الفاظ, الو کا پٹھا کسی نے پڑوسی کو بول دیا, 3 لفظ استعمال ہو, الو کا اور پٹھا. اللہ نہ کرے بے ادبی معاف, کوئی اپنے ابا کو یہ بولے تو وہی 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. بھائی کیا خیال ہے؟ لیکن جب پڑوسی کو بولے تو وہ الو کے پٹھے کے جواب میں آپ کو کہے گا تو ہوگا, یہ کہہ دے گا نا تو ہوگا. وہ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا تو اس نے, ایمپریس مارکیٹ میں جانور بکتے ہیں نا, اس نے پوچھا یہ الو یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 500 روپے کا. ایک الو کا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا, اس نے کہا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 2000 روپے کا. اس نے کہا یار وہ 500 کا اور بچہ 2000 روپے کا, یہ کیا؟ اس نے کہا یہ وہ صرف الو ہے, یہ الو کے ساتھ ساتھ الو کا پٹھا بھی ہے. یہ الو کے ساتھ ساتھ اس میں 2 کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل ایک ہی نوعیت کی گالی ہے, مگر اس کا ویٹ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. تو بھائی دیکھو, آپ جب جرم کرتے ہو حکومت کا, اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے, یعنی شخصیات سے ویٹ میں فرق پڑتا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. پھر خود نافرمانی کس نوعیت کی ہو رہی ہے. دیکھو میں 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ آپ نے گالی دی ابا کو, اس سے بھی فرق پڑے گا. وہی گالی دی پڑوسی کو, ویٹ کیا ہو جائے گا؟ کم. شخصیت بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ جرم ایک ہی ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے, کس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. دوسرا, بعض دفعہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن نافرمانی جس نوعیت کی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے. جا ذرا 1 درجن انڈے لے آ, ٹھیک ہے نا, آپ بھول گئے, کوئی بات نہیں, ابا کہیں گے تھوڑا سا, ابا صلواتیں سنا دیں گے, یار تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے یار, ہمیں تو تمہاری اماں جب بھی کہتی تھی درجن انڈے لے کر آؤ, ہم تو احتیاطاً 2 درجن لے آیا کرتے تھے. اگر تیری بیوی آ کے تجھے سدھارے گی, ایسے کہتے ہیں نا ابا, ہمیں پتا ہے تو اب ہماری نہیں مان رہا, تیری ایسے 2-4 سنائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن ابا بیمار پڑے ہوئے ہیں, ابا نے کہا فوراً ایمبولینس لے کر آؤ, مجھے اٹیک ہوا ہوا ہے. آپ بھول گئے, ابا چھوڑے گا؟
दूसरा अटैक अब्बा को होगा ये सुन के कि मेरा बेटा एम्बुलेंस लाना। हालांकि शख्सियत बोलो भाई एक ही है। और आसान मिसाल, आपके अब्बा ने आपसे कहा कि बेटा ये कर दो, ये पानी ले आओ, ये कर दो, आप भूल गए या आपने कहा छोड़ो अब्बा। एक दिन आपके अब्बा ने आपसे कहा कि बेटा तुम्हें पता है मैं तुम्हारा अब्बा हूं, मेरा एहतराम किया करो। आपने कहा एक्चुअली मुझे अभी तक दलाइल की दुनिया में इत्मीनान नहीं हुआ कि आप मेरे अब्बा हैं भी या नहीं है, मैं कंफर्म नहीं है, मैं इसमें कंफ्यूज्ड हूं। अब इसका इलाज 2-4 थप्पड़ नहीं है। अब्बा फौरन जंग अखबार से राब्ता करेगा कि मैंने इस बेटे को अपनी जायदाद से आग कर दिया। अब आप जितनी मर्जी नेकियां करो, आप सुबह शाम अब्बा के पांव दबाओ, सजदे करना शुरू कर दो, अब्बा कहेंगे तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, दफा हो जाए यहां से। आप कहें मैं इतना अच्छा, इतनी खिदमत, आप कहेंगे जब तक अपने जुर्म से तौबा नहीं करेगा ना मुझे अब्बा नहीं मानेगा। बल्कि दुनिया का जो अब्बा होगा ना वो तो कहेगा अब तेरी तौबा भी कबूल नहीं है। तो अल्लाह गफूर रहीम है जो कह रहे चल मान ले, अब अल्लाह मान ले मुझे। तो मेरे भाई जैसे अब्बा और पड़ोसी के जुर्म में फर्क, इसी तरह अब्बा के साथ दो मुख्तलिफ जराइम की नौयत में फर्क। तो ऐसे ही याद रखो, एक जुर्म वो है जो आप हुकूमत का करते हो या इंसान को सताते हो, इससे और अल्लाह की नाफरमानी में जमीन और आसमान का फर्क है। जब अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि ये करो, आप नहीं कर रहे। अल्लाह कह रहे फजर की नमाज पढ़ो, आप कह रहे हो नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहे जोहर पढ़ो, आप कह रहे हो नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहे रमजान के 1 महीने के रोजे रखो, आप कह रहे हो नहीं रखूंगा। ये हल्का जुर्म नहीं है, इसको आप हल्का समझ रहे हो, अल्लाह इसको हल्का नहीं समझ रहा। अल्लाह कह रहे तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां, तुम्हारा पड़ोसी, इनके अहकाम को तुम अगर ठुकराते हो उसकी नौयत अलग है। मेरे ऑर्डर को ठुकराते हो तुम, जैसे अल्लाह की जात बड़ी तो उसके हुक्म को ठुकराना की नौयत भी उतनी ही वजनी है। उस पे 2-4 साल कैद सजा नहीं है। अगर अल्लाह ने 2-4 साल सजा रखी होती ना जहन्नम में, तो फिर इसका मतलब यह था कि अल्लाह अपनी नाफरमानी के जुर्म को क्या समझता है, हल्का। तो और जुर्म हल्का होने से अल्लाह का हल्का होना लाजिम आ रहा है। कैसे समझाएं मेरे भाई, कैसे समझाएं। देखो पड़ोसी को आपने गाली दी, उस पर भी एक थप्पड़ लगा, अब्बा को गाली दी, उस पर भी एक थप्पड़ लगा। तीसरा आदमी यह समझेगा कि इनके यहां अब्बा में और पड़ोसी में कोई फर्क, क्या ख्याल है, जो पड़ोसी का मकाम है इनके यहां अब्बा का भी वही मकाम है, क्या ख्याल है। पड़ोसी की नाफरमानी की 1 थप्पड़ लगा, अब्बा की नाफरमानी की 10 थप्पड़ लगाए, तो पब्लिक कहेगी कि इनके यहां अब्बा में और पड़ोसी के हुकूक में फर्क है, क्योंकि अब्बा के मर्तबे में और पड़ोसी के मर्तबे में इनके यहां क्या समझा जाता है, फर्क। अगर अल्लाह अपनी नाफरमानी की सजा हल्की रखता तो ये इसकी अलामत थी कि अल्लाह की नाफरमानी करना बड़ा जुर्म नहीं है बल्कि कम जुर्म है। तो ये इसकी अलामत बनती कि अल्लाह की नाफरमानी करना कम जुर्म इसलिए है कि अल्लाह का मकाम और मखलूक का मकाम एक जैसा है, अल्लाह का की अजमत कम है। भाई इससे ज्यादा मैं कौन सी जबान में समझाऊं। दूसरी बात यह कि आप जुर्म किस नौयत का कर रहे हैं। हमेशा की जहन्नम तो हर जुर्म पे नहीं है, चोरी पे हमेशा की आग नहीं है, जिना पे हमेशा की जहन्नम नहीं है, हत्ता के कत्ल पे भी हमेशा की जहन्नम नहीं है, बख्शिश हो जाएगी एक ना एक दिन कातिल की भी। हर जुर्म पे अल्लाह ने मुआफी रखी है कि सजा पाके निकलेगा। लेकिन एक जुर्म इस नौयत का है कि उसमें अल्लाह आग कर देते हैं। वो क्या है कि आप अल्लाह को मानते ही नहीं, या अल्लाह को मानते हो मगर साथ में उसके साथ, जैसे अब्बा को आप मानो कि अब्बा मुझे आज एहसास हुआ कि मैं जो आपका इंकार करता रहा ये मैंने गलत किया, आज मुझे एहसास हो गया कि आप मेरे अब्बा हैं, लेकिन पड़ोसी भी अब्बा हैं। अब्बा कहेगा इस एहसास का ये ना ही होता तो ज्यादा अच्छा था, है भाई। बीवी अपने शौहर से कह रही है कि मैंने आपका इंकार करती रहा, मेरे शौहर नहीं, आज नादरा वालों ने मुझे सर्टिफिकेट लाके दिया और मेरा निकाह नामा दिखाया गया, तो आज दलाइल की दुनिया में पता चल गया कि आप मेरे शौहर हैं, लेकिन फलां भी मेरा शौहर है, फलां भी। वो कहेगा फिर तू उसी के पास चली जा। क्या ख्याल है भाई। तो अल्लाह कहते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि इनमें अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं इस हाल में कि उसके साथ शरीक भी करते हैं। ऐसा अल्लाह को मानना अल्लाह को पसंद नहीं है।
वहदहु ला शरीक लहू, उस जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई है ही नहीं, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब किसी चीज का इरादा कर ले कोई उसके इरादे में दखल नहीं दे सकता। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंग आती है, उसे ना नींद आती है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसका इल्म लामहदूद, तुम्हारा इल्म इंतहाई महदूद, और वो इंतहाई भी उतना जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो इस तरह के अगर अल्लाह को मानेंगे तो अल्लाह कहेगा मुझे मान रहा है, वरना वो अल्लाह को मानना ना मानना क्या है, बराबर। तो फिर अल्लाह की नजर में ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह को ना मानना कि इस जुर्म को एक नहीं है, ये 60 साल तक आप करते रहिए जुर्म। इसको ये नहीं देखा जाएगा 60 साल तक कुफ्र किया तो जहन्नम में 60 साल तक जले, इसकी क्वालिटी देखी जाएगी। इतना भारी भरकम जुर्म है कि अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए मायूस। कमा यइसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर, अल्लाह फरमाते हैं जैसे मरने के बाद लोग मायूस होते हैं कि दोबारा जिंदा नहीं होगा ना, इस तरह जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले लोग हैं वो अल्लाह की रहमत से आखिरत में हमेशा के लिए मायूस। और तीसरा कोई तबका है नहीं, या तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है या क्या बनाई है, जहन्नम। या तो अच्छे बन के जन्नत में जाओ या इम्तिहान में नाकाम होके, दुनिया में भी ऐसे ही है, या तो इम्तिहान में पास होते हैं या फेल होते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता। वो सप्लीमेंट्री भी इसलिए होती है कि वो फिर आखिर में फैसला करेंगे इधर या उधर। तो आखिरत में आराफ भी होगा वक्ती तौर पर, जन्नत और जहन्नम के दरमियान वो वक्ती होगा, उसके बाद या इधर या उधर। वो अल्लाह अपनी रहमत से इधर ही करेगा जन्नत में ही, लेकिन वो भी ईमान की शर्त के साथ। तो इसलिए भाई आप एतराज करो कि जब ये इस्लाम ने ऐसी सजाएं क्यों दी हैं, इस्लाम ने ये क्यों कर दिया, काफिर हमेशा जहन्नम में जलेगा, इसलिए कि वो काफिर है, उसको हर चीज समझ में आ रही है, बनाने वाला समझ में नहीं आ रहा। उसको कबूतर भी समझ में आ रहा है, उसको बिल्ली भी समझ में आ रही है भाई, उसको जनाब उसको अनार भी समझ में आ रहा है, उसको अंगूर भी समझ में आ रहा है। अनार का बनाने वाला उसकी समझ में नहीं आ रहा। अपने मतलब की चीजें सारी समझ में आ रही हैं, जहां अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है वो चीजें उसकी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि उस पर सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी जंगल में पड़े हुए हैं, सहरा में, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, एक आदमी एहसान करता है, जब आपकी आंख लगती है अंगूर रख के चला जाता है, आपकी आंख खुलती है, आप कहते हो यार जबरदस्त इंतजाम, अंगूर खा लिए। थोड़ी देर में आंख लगती आता है, खाना रख के चला जाता है, आप उठते ओढ़े खाना आ गया, खाना खा लिया आपने, फिर आंख लग गई। तो थोड़े दिनों में आपको ख्याल होगा ना यार ये कौन है भाई। अब एक बंदा आपको नींद से उठाता है और कहता है कि यहां एक साहब रहते हैं जो आप पर इतने मेहरबान हैं, उन्होंने आपको मरने से बचाया, कहत में हलाक होने से बचाया, हर थोड़ी देर में आपके लिए कुछ ना कुछ रख के जा रहे हैं, तो चलो उनका शुक्रिया अदा कर, अब जा रहे हो तो शुक्रिया ही अदा कर लो। आप कहते हैं भाई छोड़ो यार, हमें इससे क्या, कौन रख के जा रहा है, हमें तो ये अंगूर अच्छे लग रहे हैं, अनार अच्छे लग रहे हैं और खाना अच्छा लग रहा है, हमारा पेट भर गया, पतली गली से निकलो। किस कदर बेमुरव्वती होगी कि नहीं होगी। तो ये जितने अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, इन्हें अंगूर भी अच्छे लगते हैं, इन्हें आम के मौसम में आम भी अच्छा लगता है, खरबूजे भी शौक से खाते हैं, दूध भी शौक से पीते हैं, हाइजेनिक चीजें खाते हैं। ये सही समझ आ रही है बात। ये तो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो अल्लाह ने ऐसा लगता है सिर्फ इन लोगों के लिए बनाई है। गरीब आदमी तो बेचारा वो देख सकता है उनकी असली ओरिजिनल चीजें तो ये लोग खाते हैं, सिर्फ खाने को फोकस करते हैं, लाइफ को एंजॉय करने को फोकस करते हैं। फिर ये इस बहस में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है कि हलाल क्या है और हराम क्या है, खुदा किन चीजों से खुश होता है, खुदा किन चीजों से। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।